Assalamualaikum. Sorry for the spelling mistake, first of all. And secondly, we will start a new chapter, that is chapter number 13, lecture number 1. What, why did East Pakistan seek and then form the independent state of Bangladesh? During this chapter, we will find out the answers of why did Pakistan seek independence from West Pakistan. What roles did Sheikh Mujibur Rahman and Awami League play in the independence movement? How did Bangladesh achieve independence in 1971? During this lecture, we will discuss about the social and cultural disparities, economic disparities, and political disparities. First of all, let's start with some of the healthy introduction of this chapter. The borders of modern Bangladesh were established with the separation of Bengal and India in August 1947, when the region became East Pakistan as a part of newly formed state of Pakistan following the boundaries of the partition of India. However, it was separated from West Pakistan by 1600 kilometers of Indian territory. In 1940, the Premier of Bengal, Fazlul Haq, put forward the Lahore Resolution, which demanded that Muslim majority region as the northwest and eastern zone of India should be grouped to constitute independent state, in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. East Pakistan, now known as Bangladesh, it was a province of Pakistan from 1947 to 1955. It was known as Bengal. It was named as East Pakistan when the West Pakistan was made as one unit. The physical separation of 1,000 miles between the two wings without a common border and being surrounded by Indian territory and influences lead to constant political, economic and social conflicts between the two wings. Embittering relation brings the country on the verge of collapse. The Mayor was passed unanimously by Muslim League. This led that the people of Bengal to believe when independence came there would be an autonomous state center in Bengal. In 1946, the word states became state, and in 1947, Muslims in Bengal found themselves governed from Karachi. They were also appealed to learn that Bengal was once again to be partitioned, with a significant portion going to India. This included the major city of Calcutta with its port and important industries. So, from as early as 1947, seeds of tensions were sown. Events were to make that tension grow. ओके क्लास, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेसिक रीज़न बना था, जो चीज़ें जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को आपस में अलग कर दिया, जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश, बंगाल जो कि पहले पाकिस्तान का एक यूनिट हुआ करता था, उसको अलग कर कर एक इंडिपेंडेंट कंट्री में शिफ्ट कर दिया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। ठीक, पाकिस्तान में जो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है, वो भी एक यूनिट के तौर पर पहले लिया जाता था, पहले वो एक प्रोविंस में कंसिडर नहीं किया जाता था। ठीक है, अब जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक यूनिट, एक स्टेट में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है हमारे पास, वो भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ही वर्क करता है। बेसिकली वो है तो पाकिस्तान के पार्ट में ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंटली ही वर्क करता है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों का आपस में अलग होने का रीज़न क्या था। इसके बहुत सारे रीजंस भी थे, जैसे सोशल एंड कल्चरल डिस्पैरिटीज़ आ गए, इकोनॉमिक रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न। फिर इसके साथ साथ इसमें जो था ना, डिस्टेंस जो है ना, जियोग्राफिकल रीज़न जो है ना, एक वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो बहुत बड़ा रोल किस तरह से प्ले कर रहा है कि पाकिस्तान जो कि है वेस्ट पार्ट में आता है और जो बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पार्ट में आता है।
जो कि इंडिया की टेरिटरी के साथ ऐड होता है, कलकत्ता के साथ ऐड होता है, जिसमें कलकत्ता का सी पोर्ट आ जाता है, उसके साथ साथ उसकी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज उसमें बांग्लादेश में ऐड हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंस है इंडियन पॉलिटिक्स का वो भी बहुत ज़्यादा था तब बांग्लादेश में। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे रीजंस क्रिएट हुए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करने के लिए। 1947 में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने तब जो है वो एक बिल पास करवाने की कोशिश की थी कि जो बांग्लादेश है उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट में कंसिडर कर दिया जाए, ताकि वहाँ के जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो वहाँ से अपने गवर्नमेंट को चला सकें। लेकिन वो जवाबदेह कहाँ पर होंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जवाबदेह होंगे। बेसिकली जैसे हम लोग ये देखते हैं कि अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स हैं और वो बहुत बड़े 50 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारे उनके अपने रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, लेकिन एंड पर जो उनके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो कुछ भी सिस्टम्स उनके वर्क करते हैं, उनको इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन एंड पर वो आंसरेबल होते हैं अमेरिका को। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट्स जो है अमेरिका। ठीक है, फिर अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास जो रीजंस हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि फिज़िकल सेपरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो दो जगह पर फैला हुआ है पाकिस्तान, ईस्ट में भी है वेस्ट में भी है, जहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से भी तब खैर कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। अब कम्युनिकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब मीडिया इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं था। तब इसकी वजह से इर्द गिर्द के जो इन्फ्लुएंसेस थे इंडियन टेरिटरीज़ के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी रीजंस बने, उनकी सेपरेशन का रीज़न बन गए। अभी से हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल एंड कल्चरल डिस्पैरिटीज़ में क्या देखते हैं? जियोग्राफिकल डिस्टेंस पहले सबसे पहले यहाँ पर आ जाए। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि हज़ारों मील का जो डिफरेंस है वो बीच में आता है, जो कि दोनों विंग्स को अलग करने में एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोल प्ले कर रहा है। When Pakistan was formed in 1947, it consisted of two wings, East Pakistan and West Pakistan. You can see this on your page number 109 in the map. The capital was in the Pakistan, West Pakistan, and many people in the East Pakistan did not feel like they were equal partners in the one new nation. अभी यहाँ पर क्या अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था ना। अभी जो कैपिटल है वो जो है जो वेस्ट पाकिस्तान में है, जो वो बना दिया गया कराची में। और जो दूसरी तरफ जो अगर हम देख रहे हैं वो बांग्लादेशियों को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, इक्वल पार्टनरशिप नहीं मिल रही है इस न्यू नेशन में। While analyzing the causes of separation of East Pakistan, we cannot ignore the fact that there was a distance of 1,000 miles, 1,600 kilometers between the east and western wings of the country. The hostile India was separating the two wings. They spoke Bengali but Urdu was chosen as the national language. अभी यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर आ गई बात। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के जितने लोग हैं वहाँ पर लोग बंगाली बोलते हैं और जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। यहाँ पर वो कहते हैं कि 56% जो आवाम है पाकिस्तान की वो उस टाइम पर बंगाली बोलती थी, क्योंकि बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वो बंगाली बोलते थे। और बस जो थोड़े से ही लोग थे, बाकी बच्चे वो सिर्फ बोलते थे उर्दू में, लेकिन नेशनल लैंग्वेज उर्दू को डिक्लेयर कर दिया गया। अभी लैंग्वेजेस पर अगर हम बात करें तो इन मार्च 1948 द कायद हैज़ एडवाइज द बंगालीज टू अडॉप्ट बंगाली एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविंस बट टू कीप उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज। अभी उन्होंने क्या कहा कि अब वो बंगाली को जो है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बंगाली को रीजनल लैंग्वेज यूज़ करें, लेकिन जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू ही होगी। बट दिस इशू रिमेन्ड अनसॉल्व्ड एंड थस गॉट कॉम्प्लिकेटेड ओवर द years and to the ineptness of leader. East Pakistan witnessed a number of Awami League sponsored ratio. In one instance, Section 144 was imposed in Dhaka so as to curtail those rights, but the member of
the left-oriented Youth League and students defined the restrictive orders. Ultimately, the central leadership accepted Bengali as a second national language, but it was too late. अमैया अभी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि 1948 में कायद आज़म ने जब उनको कहा कि मतलब आपकी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू ही होनी चाहिए, बेशक आप अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है वो आप बंगाली यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे ईयर्स में ये बात जो है वो चलती रही, बात होती रही। स्टूडेंट्स ने फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया, ठीक है। एक एज अ स्टेट लैंग्वेज डे के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया। फिर जो उस टाइम पर पुलिस थी उन्होंने जो है वो टीयर गैसेस के थ्रू जो है वो इस प्रोटेस्ट को रोका भी गया। फिर उसके